नहीं बंद થઈ જાય ચાલુ થઈ ગયું રેકોર્ડ. Hello. Yes, sir. Everybody. See, last time we have discussed 14 formula up to 14. Now we start from 15 number. Now look at on your screen 15 number. Integration 1 upon under root a square minus x square dx is equal to sine inverse x by a plus c, or we say minus cos inverse x by a plus c dash, where a positive. How we prove it? We derivate right hand side function and we find out integrand function as usual, because you know integration is the anti-derivative process. So therefore, let us start derivative of sine inverse x by a plus c. Now you know in your derivative chapter what is derivative of sine inverse x. So we know formula 1 upon under root 1 upon 1 plus under 1 plus x square. 1 minus under root, hello, 1 upon under root 1 minus x square. That is formula. Here is sine inverse x by a. Therefore, its derivative 1 upon under root 1 minus x by a whole square. That is x square by a square. And into derivative of x by a we multiply. It is 1 by a. Follow it? All clear? All clear. Clear? Yes, sir. And derivative of c as usual 0 because it is constant. Now you simplify your denominator taking LCM a square. So obviously mod a upon root a square minus x square. But here a positive, so mod a as good as a, and therefore a cancel. So we direct say answer 1 upon under root a square minus x square. Hence, by antiderivative process, you can write integration, that is our 15th result. Integration 1 by root a square minus x square dx is what? Sine inverse x by a plus c. Now, how we write the other form? It is just, you know, in your inverse trigo function. Sine inverse x plus cos inverse x equal to what? Can you tell me what is sine inverse x plus cos inverse x? So 0. Pi by 2. Pi by 2. Yes, in inverse trigonometry function, sine inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So same way, sine inverse x by a plus cos inverse x by a also pi by 2. So can I replace sine inverse x by a by this formula pi by 2 minus cos inverse x by a? Yes, sir. And what minus cos inverse x by a right as it is, and plus pi by 2 plus c, that you call c dash, another constant. You have to add constant plus constant gives another constant. So therefore, answer we have either sine inverse x by a plus c or minus cos inverse x by a plus c dash. Remember, most probably we remember sine inverse x by a plus c for integration 1 by root a square minus x square dx. Generally, we use this formula. But if sometimes we write minus cos inverse x by a plus c dash, then there is no wrong. Follow all of you this? Yes, sir. Now go for 16 number. We proceed for 16. In 16 page, integration 1 upon x into root x square minus a square dx. Dx, there is dx. You have to see there, not written there, but 1 upon x root x square minus a square dx. Okay. Now its answer 1 by a sec inverse x by a plus c, where x positive. And other result also minus 1 by a cosec inverse x by a plus c dash. Follow that? Yes, sir. So we, Yes, sir. we derivate right hand side. What is d by dx of 1 by a sec inverse x by a plus c? The 1 by a as a constant we put outside. And you know derivative of sec inverse x
is 1 upon mod x under root x square minus 1. This is your formula. Derivative, remember derivative of sec inverse x only. It is 1 by mod x into root x square minus 1. But here x positive, so instead of mod x we write x. It means for sec inverse x derivative we say 1 upon x into root x square minus 1. So similarly way we say what is derivative of sec inverse x by a? So we write 1 upon x by a and into under root x by a whole square, that is x square by a square minus 1. And by chain rule, what we multiply? Derivative of x by a, that is 1 by a. All of you clear it? Yes, Yes, sir. sir. Now see in your denominator 1 by a and then into 1 upon, watch your carefully number x by a, that a cancel, x by a denominator a, and what 1 by a they cancel, and what in the under root term we have x square by a square minus 1, which by simplifying you get a square LCM and square root a square goes in upper, that is mod a, or you say a because a positive. Therefore, a cancel and you get under root x square minus a square. So that your answer is 1 upon x root x square minus a square. Clear? Yes, Yes, sir. sir. In other words, what derivative of right hand side is your integrand function. So integration 1 by x root x square minus a square is 1 by a sec inverse x by a plus c. Clear? Yes, sir. Derivative, see, derivative and integration are reverse processes. And that's why if you check derivative and you find 1 upon x root x square minus a square, it means that integration 1 by x root into root x square minus a square dx should be 1 by a sec inverse x by a. Follow it? Yes, sir. After then, I change sec inverse x by same formula. You know, in trigonometry, inverse trigonometry, sine inverse x plus cos inverse x pi by 2. Second result is what? Sec inverse x plus cosec inverse x also pi by 2. And third result also you know tan inverse x plus Tan cot inverse x inverse plus x cot pi by 2. inverse. The here use of sec inverse and cosec inverse. See, you know sec inverse x means you take any x. So suppose I take sec inverse x by a, then plus cosec inverse x by a. Can you write or not pi by 2? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can write. So what we write for sec inverse x by a? Pi by 2 minus cosec inverse x by a. First you write on your side page. In rough page you write down and check. Jo, suppose you write sec inverse x by a plus cosec inverse x by equal to pi by 2. Then from it you find out what sec inverse x by a. What will you replace for sec inverse x by a? Should be pi by 2 minus cosec inverse x by a. Am I right? Yes, sir. Right, sir. So that you put instead of sec inverse x by a, put this value. So you definitely see 1 by a into bracket. What for sec inverse a? Hello? Pi by 2 minus cosec inverse x by a. That you write. And plus c. So by opening constant and constant you much and that write c dash and minus 1 by cosec inverse x by a. It is another answer. So that are double answer. But most probably we use first answer, positive answer, 1 by sec inverse x by a plus c. Okay? Yes, sir. Okay. Now in this way, remember we have completed 16 standard integrals. Last time I have sent some pages. So in that pages you have this formula, integration x raised to n. What is integration x raised to n? Tell me. It is x raised to n X plus raised to 1 n plus upon 1 upon n n plus plus 1. 1 plus c, correct? Yes. Then Sir. after integration 1, I remind you just, integration 1 upon x dx, formula what?
log mod x plus c. Then third formula is integration a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a to the base e plus c. Then integration e raised to x dx is what? E raised to x plus c. Integration cos x dx is sin x plus c. Integration of sin x dx is what? Minus cos x plus c. Then integration of sec square x dx is tan x. Integration cos x square x dx minus cot x. Integration of sec x tan x dx sec x. Integration cosec cot minus cosec x plus c. Then integration 1 upon x square plus a square dx 1 by a tan inverse x by a plus c. Then 12th number integration 1 upon x square minus a square dx 1 by 2a into log mod x minus a upon x plus a. Same way integration 1 upon a square minus x square 1 by 2a log x plus a by x minus a. 14 formula integration 1 upon root x square plus k dx is log mod x plus root x square plus k and plus c. And today we see this 15 and 16 formula. So now we have first exercise 7.1 and all that sum depend on this formula. So the formula you have to learn carefully. Okay, now we proceed in exercise. All of you see in your textbook also on page number 299. If you have textbook, see the page number 299. The heading exercise 7.1. So what the first question look? Find an antiderivative. That means as good as integral of the following functions by the method of inspection. By the, समझो बराबर, by the method of inspection. Which mean what? Which mean you have to proceed because you know derivative rule. So you think whose derivative sin 2x and according as you proceed. And after finding last result, you have to say by antiderivative what the integral of sin 2x. Okay? Yes or no? You tell me first. Yes, sir. Yes, sir. So look at, you know sine result is derivative of cos function, that you know very well. हाँ के ना तो बोलो भाई. Yes, sir. मैं तो अरे થોડુંક ચાલુ રાખો ને, બે ત્રણ જણા તો ચાલુ રાખો, બધાના થોડા બગડી ગયેલા છે માઇક. सर मेरा माइक नहीं बिगड़ा, मेरा थोड़ा डिस्टरबेंस पीछे बोल रहे हैं. હલો, હું શું કહું છું ભાઈ તમને કે બે ત્રણ જણા માઇક બી ચાલુ રાખો તો આપણે કરસ્પોન્ડન્સ થાય ને વાતચીતનો. આ તો હું બોલીને અટકી જાઉં, તમે જોયા કરો છો, કોઈ જવાબ નહીં આવે, રિસ્પોન્સ નહીં આવે તો મને સમજ બી નહીં પડે ને. જો સ્ટાર્ટ કરીએ, હું લખું છું તે જુઓ. અંદર તમારી પાસે પેજ પર છે, સ્ક્રીન પર બરાબર જોજો. Our question is, what is integral of sin 2x? What is integral of sin 2x? So therefore, we start, we know that. Look at what we know, derivative of cos 2x. Think yourself, what is derivative of cos 2x? Try to remember cos derivative. सर पहले क्वेश्चन का माइनस साइन 2x आएगा, फिर tan रूट के तरफ से माइनस 2 आएगा. हाँ, माइनस साइन 2x फर्स्ट आएगा, इसके बाद 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से कर लो तो माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा कि नहीं? यस सर. वही बोल रहा था. अब आप देखो, अब हमको चाहिए सिर्फ साइन 2x. तो क्या करेंगे, उधर जो माइनस 2 है वो दूसरी साइड पर भेज देंगे. तो माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x हो जाएगा. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. हाँ, अभी आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं और बाद में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं. डेरिवेटिव बाहर वाला कांस्टेंट अंदर ले जा सकते हैं. देखो माइनस हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x है ना अपने पास, तो उधर माइनस हाफ जो बाहर है वो अंदर ले जाओ.
और माइनस आप अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ कॉस माइनस हाफ। अरे अंदर देख के ही बोलना है, कोई अपने जेब में से बोलने का नहीं है, तो इसमें क्यों कसर कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x। आपको पता चल गया कि कांस्टेंट अभी हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो तुरंत बोलना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ कॉस 2x हो जाएगा। तो बिकॉज Yes, sir. ऑफ, हाँ, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ माइनस हाफ कॉस 2x इज साइन 2x, तो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस हाफ कॉस 2x। Okay. डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, पता तो है ना आपको। Yes, sir. हाँ, तो मैंने बोला कि तो डेरिवेटिव जो माइनस हाफ कॉस 2x का साइन 2x है, तो साइन 2x का जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ कॉस 2x। माइनस हाफ कॉस। तो ये इंस्पेक्शन से हमने कर दिया, क्योंकि हमको डेरिवेटिव का पता है, तो डेरिवेटिव का एडवांटेज लेके ये बताता है। अभी हमने कोई इंटीग्रेशन ढूंढने का रूल समझा ही नहीं है तो कैसे यूज करेंगे, हम सिर्फ डेरिवेटिव जानते हैं, बराबर है। और Yes. डेरिवेटिव की एंटी प्रोसीजर है वो इंटीग्रेशन है। तो हमने किसका हेल्प लिया, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव बिकॉज वी नो हाउ टू डेरिवेट एंड व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, so that's why we can find the integration of sin 2x. Once again I repeat, you try to observe carefully. Derivative of cos 2x we know minus sin 2x and 2x derivative 2, so it will be minus 2 sin 2x. All clear it? Yes, sir. Then because we have interest with sin 2x, so we find what there for sin 2x, so definitely minus 2 put other side, so it should be minus half into d by dx of cos 2x, very obvious. After then, because of constant minus half, you can write d by dx of minus half cos 2x. And now we know, because we know or we see derivative of minus half cos 2x, we get sin 2x. So obviously integration sin 2x should be minus half cos 2x. Okay. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। Now you can understand better in cos 3x. Look at next number. Look at cos 3x. So how we find integration of cos 3x? So for cos 3x, we write, we know that derivative of sin 3x, because you know derivative of sin 3x, then cos 3x. So that's why let's derivate sin 3x. It should be cos 3x and 3x derivative into 3. So therefore, derivative of sin 3x is 3 cos 3x. All clear? Yes, sir. यस सर। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में आवाज भी बताते रहो, बराबर है। तो फिर cos 3x बराबर क्या होगा, 1/3 डिवाइड एक्स ऑफ साइन 3x हो जाएगा। बराबर। इसके बाद 1/3 अंदर ले जाओ तो क्या लिखोगे, d by dx of 1/3 sin 3x। sin 3x, and that's answer cos 3x. So can I say or not integration cos 3x by antiderivative, what cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x 1 पर sin 3x। तो भी ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x। पता चला अभी, बराबर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़े, थर्ड नंबर लिखो, e raised to 2x है। अभी आपको पता है कि e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आता है ना। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x ही सोचना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x क्या आता है, सर पहले e raised to 2x x, फिर ऊपर तो उसका वो है 2x, उसको करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2, बराबर है। अभी जो राइट हैंड साइड जो e raised to 2x है उसको वैसे लिखो, तो वो 2 अदर साइड पे ले जाओ, तो हाफ d by dx ऑफ e raised to 2x हो जाएगा। हाँ सर, 2 उधर गया तो। हाँ, और इसके बाद हाफ कांस्टेंट है तो अंदर ले जाओ, तो d by dx ऑफ हाफ e raised to 2x लिख सकते हैं हम।
समझे? गॉट इट सर। मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ हाफ ई रेस टू 2x बराबर ई रेस टू 2x आया। तो इसका अर्थ यही हुआ कि बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, what the anti-derivative of e raised to 2x, that is what the integration e raised to 2x. इंटीग्रेशन e raised to 2x. should be half e raised to 2x. पता चला बराबर? हाँ सर। Yes, sir. रिवर्स जाओगे, रिवर्स बोलोगे तो एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रेशन। चलो अभी नया पेज निकालो पंकज, नंबर 9, पेज नंबर 9 निकाल दो। हाँ अभी देखो इसमें नंबर 4 आना चाहिए, 4 बराबर है। देखो इसमें क्या लिखा है, हमको चाहिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए। देखो अभी थोड़ा थोड़ा कठिन भी आएगा, जरा ध्यान से समझो। मैं आपको बोलूं वो आप सुनो। जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना, डेरिवेटिव सुनो, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या पावर आएगा? 2x, एक पावर लेस हो जाएगा, है ना? अभी डेरिवेटिव एक्स क्यूब करो तो क्या आएगा? सर एक पावर लेस होकर स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर होगा। तो उसका मतलब यहाँ स्क्वायर है तो हमको किसको डेरिवेटिव करना चाहिए? ax प्लस बी का होल क्यूब, जो अपने को रिक्वायर है उसको आएगा। और बाद में अपना आंसर ढूंढ निकालेंगे। तो हमने स्टार्ट किया ax प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेटिव करके। तो आपको डेरिवेटिव का रूल्स आता ही है, तो उसी मुताबिक करो। तो 3 नीचे आएगा पहला, 3 टाइम्स ax प्लस बी का पावर 3 में से 1 कट कर दो तो 2 हो गया अभी। और बाद में चेन रूल की तरह ax प्लस बी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, वो यही है सर सेम है। हाँ, तो क्या हुआ? राइट हैंड साइड पे 3a आया और ax प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। बट हमको तो चाहिए सिर्फ ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो उधर जो राइट साइड पे 3a है उसको डिवाइड कर देंगे, ले जाओ तो 1/3a हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब होगा। बाद में 1/3 अंदर ले लो d बाई डी एक्स के अंदर, तो 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब। तो पता चल गया कि किसका डेरिवेटिव ax प्लस बी होल स्क्वायर है? तो कि 1/3a इंटू ax प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेटिव ये है, बराबर ने? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी हम एंटी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर क्या बोलेंगे? 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब। बस ऐसी तरह से हमको सोचना है, बराबर समझे? हो गया? यस सर, हो गया। Yes, sir. हाँ देखना है तो देख लो फिर से, कुछ क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हो। हाँ अगर कहीं पे समझ नहीं आए तो बता ही देना, क्योंकि यहाँ बाद में नहीं डिस्कस किया जाएगा, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपका कोई प्रॉब्लम है, ये क्यों आया, ये कैसा आया, अगर ऐसा है दिमाग में तो पूछ ही लेना। ओके, अभी कोई है कोई प्रॉब्लम इसके बारे में, नंबर 4 के बारे में? No problem, sir. तो नंबर 5 पे आगे बढ़े। हाँ इसमें Yes. 2 फंक्शन लिखा है, देखो sin 2x माइनस 4e रेस टू 3x है। तो हम उसको 60 में नहीं लिख सकते, तो मैंने क्या किया, जरा नीचे जाओ, कैंसिल कर दिया है वो टॉपिक छोड़ो। हाँ देखो मैंने सेपरेट दोनों का बताया। पहले d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x की बात करें, इंटीग्रेशन साइन 2x, तो वो तो कॉस का डेरिवेटिव है, पता ही है आपको। तो मैंने cos 2x का डेरिवेटिव किया, जो आपको पता है माइनस साइन 2x आएगा, एंड 2x का 2 डेरिवेटिव है तो माइनस 2 साइन 2x आ जाएगा। बराबर समझ में आया? Yes, सर, sir. हाँ अभी दूसरा जो फंक्शन है वो माइनस 4e रेस टू 3x है, मतलब कि 4e रेस टू 3x है। तो हम e रेस टू 3x का ही डेरिवेटिव करेंगे, वो हमको पता है। देखो वहां क्या लिखा है, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 3x, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, सर 3e raised to 3x। हाँ, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, दैट इज 3। बराबर हुआ? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अभी जो अपना ओरिजिनल फंक्शन था जिसका हमको इंटीग्रेशन चाहिए, वो साइन 2x माइनस 4e रेस टू 3x था, बराबर है ना?
हाँ सर। शुरू में जो क्वेश्चन था वो उसका बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हमने ढूंढ निकाला cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x है, तो उसमें से sin 2x इक्वल टू करके लिखोगे तो माइनस ऑफ d बाई डी एक्स cos 2x आएगा, पहले जैसा ही है। और इसके बाद डिजिट भी देख लो तो sin 2x क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ cos 2x। और डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 3x में देखो आप, वहां 3e रेस टू 3x आया था, तो e रेस टू 3x का मतलब 3 को साइड पे ले जाओ तो 1/3 d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 3x होगा। और इसके बाद हमको चाहिए -4 e रेस टू 3x, तो हमने -4/3 अंदर ले लिया। बोलो है कोई गड़बड़? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नो सर। Yes. अभी हाँ सर, हमको दोनों ज्वाइंट multiply करके करा दिया। लिखना है, दूसरा कुछ नहीं, ज्वाइंट करके लिखना है। तो क्या एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 ई रेस टू 3x आएगा, तो वो आएगा माइनस हाफ cos Minus 2x half sin cos 2x का है, 2x। और इसका है -4 ई रेस टू 3x है ना, -4/3 ई रेस टू 2x। तो हो गया उसका आंसर कंप्लीट। ऊपर ले जरा पंकज, दिखाई देगा हम लोगों को। हाँ, -4/3 है लास्ट लाइन। સર આટલું જ છે આ. वो तो पता, આનાથી નીચે हाँ कई वांधो नहीं, कई वांधो नहीं, समझाई जाए। माइनस हाफ cos 2x जो ऊपर है ने डेरिवेटिव के अंदर वो ही आएगा, और यहाँ -4/3 रेस टू 3x वही क्वेश्चन वाला ही होगा। बोलो पता चला कुछ कि गड़बड़ लगी? हाँ सर, नो सर, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, अब जो आने वाला है वो मतलब के 6 से जो आगे बढ़ेंगे, देखो टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं। अब फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20 मतलब के इंटीग्रेट नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 4e रेस टू 3x प्लस 1 dx। अब हम करने जा रहे हैं रूल्स से, जो हम लोगों ने 16 फॉर्मूला बनाई है ना, अभी अभी बताया वो आपको। Yes, sir. हाँ, आप लोगों ने लास्ट टाइम लिख दिया हो तो पता चल गया हो कौन सी फॉर्मूला है। हाँ सर, लिखा। कौन सी फॉर्मूला है वो आपको पता चल गया होगा, है हाँ ना? सर। हाँ, तो वो 15 फॉर्मूला आपके पास तो होगी ही, 16 फॉर्मूला। तो जितना पेज आपके पास होगा, मतलब कि कल परसों आपने लिखा हो, तो उसमें देख लो। हेलो, अरे हमણા स्टडी कराऊं છું દીકરા, બંધ કરી દઉં? બાય। ओके, हाँ, तो આપણે વાત એ હતી ભાઈ કે હાઉ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ। તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 માં ઇન્ટિગ્રેશન 4e રેસ ટુ 3x પ્લસ 1 dx બરાબર છે। હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીએ છીએ, જરા બધા રિસ્પોન્સ આપજો, બેસીને રહેતા। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ટેક આઉટ કોન્સ્ટન્ટ, ટેક આઉટ हाँ सर। and integration e raised to 3x dx, then plus integration 1 dx। बोलो समझ में आया? Yes, हाँ, sir. हो जाएगा। सेपरेट इंटीग्रेशन है। अभी देखो 4 एज इट इज और e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, देखो e रेस टू 3x अपॉन 3। मतलब क्या हुआ कि e रेस टू 3x का तो e रेस टू 3x का ही आएगा, और जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन में रिवर्स करने का, डिनोमिनेटर में लिखने का है। अब समझ Okay, में आ sir. गया होगा। तभी हम जो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आंसर आएगा 4 इंटू ई रेस टू 3x/3। उसका जो डेरिवेटिव चालू करो तो 4/3 आएगा। ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x इंटू 3 आएगा, तो 3 कट होगा तो 4 इंटू ई रेस टू 3x दिखाई देगा। पता चला नहीं? तो इसीलिए इंटीग्रेशन ई रेस टू 3x क्या आएगा, ई रेस टू 3x अपॉन 3। बोलिए जरा, हम सामने चुपचाप बंद करके बैठ नहीं जाओ भाई। हाँ सर। Okay, sir.
अगर आपका माइक खराब है तो उसको रिपेयरिंग कराओ, वरना कैसे पढ़ोगे सर आप? माइक क्लियर खराब नहीं, माइक क्लियर खराब नहीं है सर, प्रॉपर डिस्टर्ब। थोड़े थोड़े टाइम तो खुला करते रहो, तो देखा जाएगा ना। चलो, +1 का इंटीग्रेशन तो x पता है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x1। हाँ सर। अगर ऐसा नहीं आता है तो 1 को हम Folder x process। देखो 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, x अभी रेस टू 1/1 हो गया तो x आ गया। यहाँ x⁻n की फॉर्मूला यूज कर लो, तो x⁻0 + 1/0 + 1 लिखेंगे कि नहीं? हाँ सर। यस सर। इंटीग्रेशन x⁻n अभी पहली ही फॉर्मूला है, वो पता होगा आपको। x⁻⁴ में एक वृद्धि करना है n+1, और वही पावर डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इंटीग्रेशन x⁻0 का इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻0 + 1 होगा, और डिनोमिनेटर भी 0 + 1 होगा। पता चला बराबर? तो उसका मतलब ही x/1 मतलब x हुआ। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और समझ में लीजिए, क्योंकि ये शुरुआत है तो सहला आएगा, बाद में तो बहुत डेंजर आने वाले हैं। पहले हाँ, तो जो जो फॉर्मूला है वो आप लर्न करके ही बैठो। जो मैंने 16 फॉर्मूला बताई है वो बराबर करनी ही चाहिए। करोगे फॉर्मूला तो समझ में आएगा कि ये कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा। नहीं तो आप देखते रहोगे और मैं आगे आगे बढ़ता रहूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। पता चला बरा सबको, आपको? यस सर। हाँ सर। हाँ, नहीं पता हो तो बाय साइड पेज रखो, रफ पेज रखो, बॉल पेन रखो, और 2-4 फॉर्मूला लिखते रहो। फॉर्मूला साइड पे लिखोगे तो आपको चेक करना आसान हो जाएगा। देखो, एक फॉर्मूला लिख दो पहले, इंटीग्रेशन x⁻n dx। पता हो या ना हो, लिखो इक्वल टू x⁻n+1 पावर डिनोमिनेटर n+1 + c। यस सर। हाँ, अभी देखो 7 सम। तो देखो कहाँ करना है इंटीग्रेशन, अंदर क्या लिखा है पढ़ो, x² इंटू ब्रैकेट 1 - 1/x² इंटू dx है, बराबर है? यस सर। हाँ, अभी देखो यस सर। हाँ, आउटसाइड जो x² है अंदर प्रोडक्ट कर लो दोनों, मतलब कि ब्रैकेट ओपन करो तो x² इंटू 1x² होगा, हाँ सर। और दूसरी टर्म में x² कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ -1 ही होगा। हाँ सर। तो इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा अब? x² - 1 का। बोलो यस यस सर। यस सर, यस सर करते आगे बढ़ो तो आगे समझ में आएगा। अभी देखो सर। इंटीग्रेशन x² dx का पहला लिखते हैं, सेपरेटली 1 बाय 1 सेपरेट करेंगे तो x² का क्या आएगा? वो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाई, उसको देखो, x³/3। आ गया ना समझ में? n की हाँ जगह 2 है, यस वो सर। लिखना है 2 + 1/2 + 1। अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, परमानेंटली याद रखो वो सिंपल x ही आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x ही बोला जाएगा। इतना सिंपल है, हो जाएगा अब सर। दिमाग में हम्म। आया यस सर। समझ? सबको आ गया समझ में 7 कैसे करे किया हमने? हाँ सर। अच्छा, आगे बढ़ो। हाँ, नंबर 8 देखो, ऊपर जाने दो। हाँ देखो, इंटीग्रेशन ax³ + bx + c dx। अभी देखो जो abc है वो कांस्टेंट है, तो हमने वर्किंग रूल में लिख दिया है कि जो कोई कांस्टेंट इनसाइड होगा तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसका आंसर किस तरह से लाएंगे? तो पहले ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन x³ dx करेंगे, प्लस bx इंटीग्रेशन का है तो b बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन x dx होगा। देन प्लस c इंटीग्रेशन है तो c को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेशन 1 dx होगा। बोलो, हो गया पता? यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, अभी आगे बढ़े। अभी इंटीग्रेशन करने का है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका उसी मुताबिक आंसर देना है। आप सोचो अपनी तरीके से, ए एस इट इज x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ + 1/3 + 1। हाँ हाँ हाँ, એટલે x⁴/4 डायरेक्ट बोल सकते हैं हम। एक पावर बढ़ाना ओके है सर। और वही पावर डिनोमिनेटर में लिखना है। फॉर्मूला बराबर ध्यान में रखो, कैसे यूज करते हैं वो देखो। यहाँ पता चल गया x4/4? यस सर।
अच्छा, प्लस हाँ, बी एज इट इज, और इंटीग्रेशन एक्स का क्या करेंगे हम? सर एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ, बाई 2। पावर बढ़ाएंगे, एक्स का पावर अभी 1 है तो एक ऐड करो तो पावर हो गया 2, और वही 2 नीचे लिखेंगे, हो गया बराबर, प्लस सी। और अब हम इंटीग्रेशन 1 का बात करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन मीन्स यू हैव टू थिंक हुज डेरिवेटिव 1, तो आपको पता ही चल जाएगा एक्स का ही है। तो इंटीग्रेशन 1 dx क्या आएगा? x, तो हो गया सी एक्स, प्लस कोई अनदर कांस्टेंट लिख दो, या तो सी डैश कर दो, सी सेम नहीं लिखो, डी कर दो, क्योंकि सी आ गया है आगे, तो बाद में जो कांस्टेंट, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखते हैं ना, तो चेंज कर सकते हैं आप। बोलो, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ ही जाना चाहिए। Yes, sir. नो तकलीफ सर। हाँ, आगे बढ़ो, नंबर 10 को देखें। अच्छा, इसको अंदर देखो, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx, ऐसा लिखा है। तो सर अभी a आपका माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना पहले? हाँ, फॉर्मूला ही लगाना है, जैसे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं ना, वैसे ही करना है। तो क्या होगा बोलो? रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x, रूट एक्स स्क्वायर को x, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली होल स्क्वायर का एक्सपांशन लिख रहे हैं। पता चला सबको? अच्छा। हाँ, तो क्या आएगा बोलो? बराबर है, मैंने लिखा है वो चेक ही करना है आपको, तो बोल देख के बोलना है कि क्या यस सर, है। बराबर है, बराबर है। हाँ, x आया, मिडल टर्म में -2 करके प्रोडक्ट होगा तो रूट एक्स कट हो जाएगा तो -2 होगा, एंड प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर करो तो वो भी 1/x आएगा। अभी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, सेपरेटली ऑल 3 टर्म्स वी इंटीग्रेट। तो फर्स्ट टर्म इज x, इंटीग्रेशन x dx का आएगा, बोलो। एक्स स्क्वायर बाई सर 2। x तो x, हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का पावर 1 बढ़ जाएगा, 1 तो है ऑलरेडी, तो 2 हो जाएगा, और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगा। और इसके बाद सेकंड टर्म की सोचो, -2 ही है, वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, -2 और वहाँ 1 होगा तो उसका x हो जाएगा। बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x, मतलब -2x हो गया। आया समझ में? Yes. यस सर। अभी थर्ड टर्म आई, देखो थर्ड टर्म 1/x dx आया, तो उसका इंटीग्रेशन हम अपने रूल से नहीं कर सकते x⁻n से, क्योंकि ये 1/x का मतलब x का पावर कितना हो गया? -1। और उसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो -1, मतलब x⁻² बाय -2 हो जाएगा। हाँ, वो नहीं लगेगा, वो रूल्स ही नहीं लगने वाला, क्योंकि वो रूल सिर्फ n नॉट इक्वल टू -1 के लिए ही है। अगर हमने लिख दिया तो गलत आंसर आएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx जो अगर हम रूल से लिखेंगे वो x⁻n चलता ही नहीं, वो रूल लगने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपने मिस्टेक से भी लगा दिया तो कितना खराब रिजल्ट आएगा। देखो, x n की जगह -1 लिख के देखो क्या होता है, x का पावर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो क्या आप बोल सकती है अनडिफाइंड हो गया? तो ये रूल चलने वाला नहीं उसके लिए, तो उसका रूल हमने ढूंढ निकाला है, पहले ही आ गया है, इंटीग्रेशन 1/x dx, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर की फॉर्मूला मैंने बताई थी, log mod x। आया समझ में? हाँ सर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ पूरा सर। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 1/x dx का मतलब हुआ log mod x। अभी मैंने डायरेक्ट 19 सम लिखा है, दिखता है अब सामने पेज पे, तो वो नहीं करने का है, पहले हम करेंगे 11। अब वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखा है मैंने, तो चालू करो। अभी हम, तुम्हारे पास साइड पे जो कोई पेज हो वो ले बैठो, बॉल पेन ले लो, और 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, वो टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक पहला नंबर 11, मैंने 2-4 सम तो अभी बता दिया, तो आइडिया तो आ ही गया क्या करना है।
अच्छा, तो वो टेक्स्ट बुक का सम है अपना नंबर 11। देखो ये पंकज आपके लिए मेहनत कर रहा है, किसी के पास नहीं है तो देख लो, पार्ट 2 आएगी। हाँ आ गई बुक, अभी ओपन करो पेज नंबर 299। चैप्टर नंबर 7। हाँ 299 पेज नंबर आपको निकालना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला का लिस्ट देखा है, ये सबको याद रखना है, बाद में थोड़ी ऐड एक्स्ट्रा होगी तो बाद में आएगा। पेज देखो, पेज हाँ आ गया आ गया आ गया, बराबर है। देखो अब सम नंबर 11 आपके स्क्रीन थैंक यू पर, अंकल। वो सम लिखो और उसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप ही बताओ, कोई भी एक राय आप थोड़ा कोशिश करो, कैसे करेंगे हम, उसकी थोड़ी आइडिया दो। सर हम लोग ये एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं तीनों मैं में। सम नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। पहले क्या करोगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ऑल 3 टर्म्स। हेलो, हाँ बोलो हाँ बोलो। सर वही बोला सर, एक्स स्क्वायर करते हैं और 3 टर्म्स को। हाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो सेपरेटली, क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चन का रूल ही नहीं है यहाँ इंटीग्रेशन का। तो क्या किया जाए, हर एक टर्म को डिनोमिनेटर वाला जो एक्स स्क्वायर है इससे डिवाइड करके लिखो। पहले चलो स्टार्ट करो अपनी नोटबुक में, और पेज में जो है वो लिखना शुरू हाँ करो। सर। बैठा मत रहो। चलो इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहला टर्म एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स करोगे स्क्वायर बाय 2 आएगा सर उसका। अरे भाई आंसर नहीं चाहिए हमको, पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, X, बाद में इंटीग्रेशन सर करेंगे। तो सॉरी एक्स ही आएगा ना। हाँ सर। हाँ प्लस क्या आएगा दूसरी टर्म, 5x स्क्वायर 5। 5 जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। अच्छा कट कर, हाँ हाँ એના પછી એનું મને તમે बेहद आप लोग दिमाग नहीं चलता आपका क्या, मेरे समझ में नहीं आया का कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। डिवाइड एक्स स्क्वायर में बोल रहा हूँ बार बार, सेपरेट करो। तो हर एक को डिवाइड करके जो आता है वो लिखना है, वो भी फाफा मारते हैं। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स आएगा, फिर 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 5 होगा, और तीसरा नंबर आएगा -4 बाई एक्स स्क्वायर है, तो वो लिखो -4 और x को ऊपर ले जाओ तो x रेज टू -2। हाँ सर। यस सर। तो तीनों टर्म हो गया, अभी उसका सेपरेट इंटीग्रेशन करो। पहले का इंटीग्रेशन x dx लिखो, बाद में कांस्टेंट 5 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1 dx लिखो, बाद में -4 भी कांस्टेंट करके बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन x रेज टू -2 dx लिखो। बोलो अब हो गया। हाँ सर। अब सेपरेटली इंटीग्रेशन जो आपको पता है उसी मुताबिक फॉर्मूला से करते जाओ। चलो पहला इंटीग्रेशन x dx का आएगा, वो जो आप बोल रहे थे पहले, बोलो। इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन। अरे उभी रे, पहलू एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। उभा रहो, आयुषी बीजा कोई नहीं बोले। चलो व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म x, इंटीग्रेशन x dx એનો આન્સર બોલને। x upon x plus अरे x upon 1 plus 1 ને નીચે upon 1 plus 1। હું લવાળા થોકે ગમે ટાઈમ લગે, x નો પાવર 2 એમ બોલ દેને, x સ્ક્વેર બાય 2। हेलो हाँ x स्क्वेर बाय 2 ऐसा बोल। हाँ सर पहले का 5x પછી 5x राइट, પછી -4 પછી x -1 upon -1। वेरी गुड ने, प्लस c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो लास्ट वाला जो था इसमें ही गड़बड़ होती है, वो सोचो
x का पावर -2 का इंटीग्रेशन में -2 + 1 करोगे तो x रेज टू -1 और वही -1 नीचे लिखना है, बराबर है। सबका हो गया? पंकज आपका भी ध्यान में आया? यस सर। चलो अभी 12th नंबर का सम आता है। 12th नंबर का सम लिखो पहले। x³ + 3x + 4 /√x dx। हाँ सर। अच्छा जो अपन- हाँ अभी मेरी बात सुन लो पहले, सब लोग सुनो बराबर ध्यान से। डिनोमिनेटर आपको तो पता है ही कि हर एक टर्म को डिवाइड करना है, लेकिन डिनोमिनेटर सिंपल टर्म नहीं है, √x है। √x का मतलब x टू द पावर 1/2, 1/2, x का पावर 1/2 हाँ है सर। ना। तो वो ऊपर डिवाइड करोगे तो हर एक में से पावर 1/2 कट करना पड़ेगा। जैसे कि x³ / x⁻½ करोगे तो x का पावर 3 - ½ होगा। यस सर। हाँ अभी 3 - ½ की जो कैलकुलेशन आता है वो बाद में लिखने का, 3 × 2 = 6 - 1 5/2, और इसके बाद इंटीग्रेशन की बात आएगी, बराबर है। यस सर। अच्छा सेकंड टर्म में भी देखो, मैं पहले बोल जाता हूँ बाद में हम लिखते हैं। चलो सेकंड टर्म में क्या है, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन x/ जो √x है वो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 ऊपर ऑलरेडी है और नीचे से हाफ जाएगा, ऊपर तो कट होगा तो 1 - ½ मतलब कि x⁻½ होगा। यस सर। अच्छा Yes. तो तीसरा टर्म क्या होगा आप बोल सकते हैं? 4 4 × x⁻⁻, नीचे का पूरा टर्म ऊपर जा रहा है, हाफ sir. तो है ही नहीं नीचे भाई, ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा। आया कि नहीं अभी समझ में? हाँ सर। यस सर। चलो तो ऐसी तरह से सेपरेट करके लिख लो। जो है पहला इंटीग्रेशन, पहला टर्म क्या आएगा, मैंने बोला x⁻³ 3 - ½ और dx प्लस 3 कांस्टेंट आउटसाइड निकाल दो और इंटीग्रेशन x½ x⁻½ dx प्लस थर्ड टर्म में 4 कांस्टेंट बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x⁻⁻½ dx। सबका कंप्लीट हुआ? यस। हाँ सर। हाँ अभी आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगानी है, बस दूसरा क्या है। चलो पहले वाले का आंसर कैसे आएगा, तो पावर 5/2 है ना, तो x⁻⁵² + 1 होल अपॉन 5/2 + 1 ऐसा लिखो, बराबर है। यस सर। प्लस okay. बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़े। प्लस सेकंड टर्म का लिखो, 3 कांस्टेंट एज इट इज हो गया। अभी इंटीग्रेशन किसका लिखना है, x⁻½ का, बराबर नहीं, तो उसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, x⁻½ + 1, डिनोमिनेटर में भी ½ + 1 लिखो, बराबर ध्यान से। यस सर। अच्छा +4 आउटसाइड होगा। अभी जो हम इंटीग्रेशन x⁻⁻½ का लिखने जा रहे हैं तो क्या होगा, बोलो x⁻⁻, बोलो आप। 7 अरे x -½ -1 या +1 रूल्स जो है रूल्स को फॉलो करो। x Yes, का sir, पावर 1/2. -½ है तो इसका इंटीग्रेशन में +1 ऐड करो, डिनोमिनेटर -½ + 1 और बाद में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखो। हाँ सर। Yes, sir, चलो हो गया। अभी सिंप्लीफाई करके बोलो क्या क्या आंसर सर आ आएगा। गया x⁻⁷/2 x⁻⁷/2 upon 7/2 प्लस धीरे धीरे, x⁻⁴/2 अरे एक स्टेप बोलो, सिर्फ एक ही आदमी बोलो। चलो बच्चे राय बोलो, राय तुम बोलो जो है। हाँ सर मैं बोलता x⁻⁷/2 upon 7/2 x⁻² कितना आया, 7/2 7/2, 5/2 था, हाँ इसीलिए 7/2, और डिनोमिनेटर में भी 7/2 है, उसको हम 2 अभी बाद में हम 2/7 भी कर सकेंगे, बराबर है। चलो आगे दूसरा टर्म। आगे 3 x⁻³ 3/2 upon 3/2 हाँ और लास्ट वाला
x रेज टू हाफ अपॉन x रेज टू हाफ 4 तो बाहर है ना, मतलब x रेज टू हाफ। हाँ सर, वो कांस्टेंट मत भूलना, वो बाहर रखने का। हाँ वो बाहर है सर, 3+4 हाँ पे कर हाँ। दिया मैंने। तो एक्स रेस टू 3 बाई, लास्ट में आया क्या, एक्स रेस टू हाफ अपॉन हाफ, हाँ ने प्लस सी। चलो अभी सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे वाला उल्टा के लिखो, नीचे 7/2 है तो हो जाएगा 2/7 एक्स रेस टू 7/2, हम्म, फिर 2/3 इंटू एक्स रेस टू 3/2, बाहर 3 है वो भूलना मत, 3 yes इंटू sir, करके, 3 इंटू करके आएगा ना 2/3, तो 3 बाद में कट भी हो जाएगा, करना है तो अभी से भी कर सकते हैं, मतलब 2x रेस टू 3/2 इतना आया। और लास्ट वाला में +4 इंटू एक्स रेस टू हाफ बाई हाफ था, तो नीचे वाला हाफ ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, yes sir, 8x रेस टू हाफ ऐसा आया, प्लस हाँ सी। sir, થઈ हो ગયું, गया, हो गया बराबर, हाँ sir, Yes, sir. सबको समझ में आया ना। हाँ sir, अभी अभी 13 सम पे देखे, 13 में क्या है, हाँ sir, क्वेश्चन लगे हैं। 13 सम लिख दो पहले। 13 सम भी सिंपल है। क्वेश्चन देखो, x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x-1 होल डिवाइड बाय x-1 dx। किसी को आइडिया आ रही है तो बोलिए। ये क्वेश्चन फॉर्म है तो हमको हमको X minus x-1 से, common लेंगे। पहले सुन लो, पहले x-1 से डिवाइड करना है, वो सिंपल उसी टाइप का सम नहीं है अगले वाले जैसे। यहाँ क्या करेंगे, x-1 फैक्टर्स निकालो ऊपर से, कैसे फैक्टर्स निकाल सकोगे वो सोचो। हाँ सर, x³ અને x² માંથી x² કોમન કાઢી દો। यस, तो x-1 आ जाएगा, राइट, एंड प्लस ऑलरेडी x-1 फैक्टर है ही, तो उसको एक ही टर्म रखो, बाद में x-1 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ x² + 1 बचेगा। चलो मैं बताता हूँ, लिखते जाओ। पहला ये क्वेश्चन तो लिख दिया आप लोगों ने, फिर से Yes, लिखो आगे इक्वल टू करके, इंटीग्रेशन जो x³ माइनस x² में से आपने बोला ना x² कॉमन निकाल दो, तो निकाल दो, x² इंटू ब्रैकेट करके लिखो, क्या आएगा ब्रैकेट में, x minus -1, फिर प्लस करके ब्रैकेट में ही लिखो x-1, क्योंकि वो उसमें सेट करने का ही नहीं, रेडी है, और फिर से डिनोमिनेटर में x-1 लिख दो dx करके। हाँ, अब अगर हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इंटीग्रेशन, पहली वाली टर्म को डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड करो तो कट हो जाएगा कि नहीं x-1, हाँ सर, राइट। सर सिर्फ x² + 1 बचा, सर हाँ, सिर्फ x² x² + 1 आएगा, और प्लस करके दूसरी टर्म को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, वो भी कट हो जाएगा, वो 1 आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ x² + 1 dx आया। अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। हाँ सर, 30। Yes, sir. हाँ सर, हाँ, अभी हम दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। हाँ, तो इंटीग्रेशन x² dx क्या करोगे आंसर, x³ by 3। 3, वेरी गुड, x³/3 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx का क्या लिखोगे, x प्लस c, बस दैट्स ऑल। हाँ सर, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तभी आपको ध्यान में आएगा कैसे क्या करना है, बस सिर्फ देखते रहोगे सुनते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने थोड़ा सम आपके लिए छोड़ रखा कि आप ट्राई करो तो पता चले कि कैसे आता है वो। चलो अभी अगर 14 में ट्राई करो, 14 में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप सुनो, अपने दिमाग से आइडिया दौड़ाओ, काम कंप्लीट कर दो, वो दिखाई देता है कैसे करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है। हाँ सर, इंटू करेंगे।
सर 2/3 पहले क्या किया, ओपन किया। पहले सर रूट एक्स उसको अंदर मल्टीप्लाई करा। dx से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन वाला हाँ, रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन रूट एक्स यानी एक्स रेज टू हाफ हाफ माइनस एक्स रेज टू 1.5 मीन्स 3/2। हाँ सर अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो क्या हुआ इंटीग्रेशन, बोलो पहली टर्म का क्या आया। x रेज टू हाफ सर एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। हाँ, आंसर बोलने का है एक्स रेज टू हाफ का हाँ। इंटीग्रेशन हाँ, एक्स रेज टू 3/2 अपन 3/2, राइट। और उस इसके वाले का बाद है एक्स रेज टू 5/2 अपॉन 5/2। 5/2 अपन 5/2 प्लस सी बराबर है। अभी जो डिनोमिनेटर में 3/2 5/2 है उसको 2/2 2/5 करके आंसर लिख दो, बस वही है। यस सर यस सर सर થઈ ગયું ओके, सरस। अभी 15 सम में आगे बढ़ो। सर ये भी कुछ ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सेम है। सर 6/7 हाँ, अभी देखो पहला प्रोडक्ट करके बोलो, जो आंसर प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन क्या आएगा। 3x रेज टू 3x रेज टू 5/2। हाफ ऐड करोगे तो 5/2 होगा ना। हाँ सर वही आया मेरा। अच्छा, दूसरी टर्म में क्या होगा, 2x 2x रेज टू 3/2 3/2 और तीसरी टर्म में क्या आएगा, 3 प्लस 3x रेज टू हाफ। ओके, और इसके बाद आप इंटीग्रेशन करने जाओ, पहला कांस्टेंट बाहर रखो और इंटीग्रेशन करो तो 3 इंटू हाँ एक्स रेज टू क्या पावर था 5/2 था ने, तो 7/2 एक्स रेज टू 7/2 अपन 7/2 आएगा, बराबर है। हाँ सर પછી 2 प्लस सेकंड टर्म में क्या आएगा, 3/2 હતું પછી 5/2 થઈ જશે +1 हाँ 2 बराबर कांस्टेंट बार 2 इंटू एक्स रेज टू 5/2 अपन 5/2 होगा, राइट। एंड लास्ट वाली टर्म में प्लस 3 एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 अपन 3/2 प्लस सी बराबर है, फिर सिंपलीफाई करके लिख दो, वो तो आता ही है ना। हाँ सर થઈ ગયું यस सर થઈ ગયું सरस। अब 16 सम पे आगे बढ़े। सिक्सटीन सम में देखो 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स है, बहुत नॉर्मल सम है, कांस्टेंट है, उसको बाहर रखते जाओ और सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो। पहले इक्वल टू करके लिखो 2 कांस्टेंट बार इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 बार इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स dx। इसी तरह हम लिख सकते हैं, आ गया बराबर। हाँ सर अच्छा, अब यस देखो सर अभी अभी आंसर लिखेंगे तो 2 एज इट इज रहेगा, फिर इंटीग्रेशन x का क्या लिखोगे, x²/2 बराबर, पर माइनस 3 एज इट इज रहेगा, cos x का क्या इंटीग्रेशन लिखोगे, माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा। नहीं देखो बराबर ध्यान से बोलो, -3 एज इट इज लिख दिया हमने, फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं जरा सुनाई दो। sin x हाँ, डोंट से माइनस साइन एक्स, ओनली साइन एक्स। यहाँ cos x, हाँ मैं बोलूँ तो सुनो पहले, cos x का इंटीग्रेशन sin x बोला जाएगा क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है। अगर यहाँ आपने माइनस साइन x लिख दिया तो आपका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, वो पता है, तो वो यहाँ मिक्स नहीं करने का। -3 लिखो एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव सिंपली sin x लिखो, प्लस e रेज टू x का तो e रेज टू x ही है। फॉर्मूला अभी जो बताइए ना वो 16 फॉर्मूला इसमें सही है, तीसरी चौथी फॉर्मूला आएगी e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x प्लस c। तो फाइनल आंसर में बोलूं क्या आएगा उसका, 2 कट हो गया पहले में तो x² आएगा, -3 sin x प्लस e रेज टू x प्लस c। कोई मुश्किल ही है उसमें 16 में? नो सर। अच्छा, अब 17 आप गिनो, 17 भी आ जाएगा आपको, बहुत सिंपल ट्रिक है। हाँ सर 17 पर नहीं। यस सर, हो गया। हाँ सर। हो गया? हाँ सर डायरेक्ट Yes. एंट्री। पहले कांस्टेंट 2 बाहर रखो, x² का इंटीग्रेशन, जो पहले तो एक स्टेप ऐसा लिखने का, इंटीग्रेशन करने बगैर लिखने का, 2 बाहर इंटीग्रेशन x² dx -3 आउटसाइड इंटीग्रेशन sin x dx +5 आउटसाइड इंटीग्रेशन √x dx, ऐसा पहला लिखने का, बाद में इंटीग्रेशन करो, एक साथ मत करो। इसके बाद क्योंकि स्टेप का मार्क्स होता है, पहला स्टेप कैसा लिखा, दूसरा स्टेप कैसे लिखा, इसी मुताबिक मार्क मिलते हैं। देखो जैसे एग्जाम हाँ में, सर मैंने वैसे ही लिखा है तो अभी आया मेरे। वो मैं कह रहा हूँ आपको, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन का 2 मार्क है तो पेपर सेटर जब पेपर सेट करते हैं ना, तो उसको बताना पड़ता है कि 2 मार्क्स कैसे आपने डिवाइड किया है, कहाँ कहाँ आप मार्क रखने वाले हैं, समझे? तो इसीलिए उसको मार्क्स रखने की जगह मिलनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट आंसर देगा तो आपको डायरेक्ट ही मार्क मिल जाएगा, 2 के जगह 1 मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच वाला स्टेप छोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप ओमिट बोलते हैं। એટલે ऐसा ध्यान हो, एसओ लिख देते हैं, एसओ करके मतलब क्यों काटा, तो एसओ, एसओ का मतलब क्या हुआ, स्टेप आपने ओमिट कर दिया, तो वो स्टेप, हाँ, तो वो एग्जाम में स्टेप कभी भी ओमिट करने का नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो बराबर ध्यान से, ऐसे करते हैं आप लोग, क्योंकि आपको डायरेक्ट इतना प्रैक्टिस हो जाएगा इनका, बाद में तो आप रुकने वाला नहीं है, हो डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि स्टेप का मार्क्स है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहला ऐसा लिखो, 2 कांस्टेंट बाहर निकालो, x² dx करो, फिर -3 बाहर निकालो, sin x dx +5 आउटसाइड, फिर इंटीग्रेशन √x dx, और बाद में उसका रिप्लाई करो कि 2 एज इट इज है, x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, -3 है, sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। देखो यहाँ प्लस cos x नहीं आएगा, sin x whose डेरिवेटिव sin x, तो आपने जानिए -cos x, cos x का डेरिवेटिव -sin x है, तो sin x का इंटीग्रेशन ध्यान में रखो -cos x, +5 एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू हाफ, तो x रेज़ टू 3/2, और इसके बाद सिंप्लीफाई जो आता है वो करते जाओ, जैसे कि -3 × -cos x लिखा है तो माइनस माइनस +3 cos x हो जाएगा, फिर 5 और डिनोमिनेटर में 3/2 आया है तो 2 ऊपर जाएगा तो 10/3 हो जाएगा, तो इसी तरफ के सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, यस। सबको समझ में आया ना बराबर? अच्छा, तो अब नंबर 18 आता है, 18 सम लिख दो पहले। कंप्लीट सर। समझ में आया बराबर? हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो इसमें क्या करना है बोलो, sec x प्रोडक्ट कर दो, sec x प्रोडक्ट कर दो अंदर, sec x का मतलब sec² x हुआ, sec² x। यस सर। प्लस sec x tan x एंड dx,
Yes. अभी दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स Dx प्लस plus इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, और दोनों की सेपरेट फॉर्मूला है हम लोगों के पास। Yes, sir. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा बोलो? 10x 10x. 10x। और इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का Sec sec x. x. sec सेक x एक्स। हाँ, अगर आप भूल जाओ ने तो क्या सोचना है वो भी बता दे वो ट्रिक। इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स है, नहीं याद आता है तो क्या बोलेंगे हम सोचेंगे कि हुज डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। तो शायद डेरिवेटिव आपका दिमाग में हो उसका या सेक एक्स का डेरिवेटिव है तो आंसर सेक एक्स ही लिखने का है बस। हाँ सर, मेरा वैसे ही आया अभी। हाँ, वो ही मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओगे कभी कभी फॉर्मूला तो रिवर्स में जाओ। मैंने अभी बार बार बोला है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। जो आप डेरिवेटिव करता है और आंसर आता है उसका ही इंटीग्रेशन जिसका हमने डेरिवेटिव किया है वो आता है, बस यही समझना है। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन लिखना है। मान लो कि आप भूल गए फॉर्मूला, तो पहले ये दिमाग में लाओ कि किसका डेरिवेटिव sec x tan x आता है, तो समझ में आ जाएगा शायद जो पढ़ा हो अच्छी तरह से तो कि sec x का डेरिवेटिव ही यही है, तो हम आंसर लिख सकते हैं sec x। तो बहुत सिंपल हो गया, पता चल गया आप लोगों को। Yes, sir. अभी 19 वाला सम लिखो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 19 वाला सम मैंने तो उसमें करके बताया है, फिर भी आप लिखो तो पता चले। देखो सेक स्क्वेयर एक्स बाई कॉसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स लिखा है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कैसे ढूंढेंगे, आइडिया ही नहीं Sir, आती sec होगी। equal to हाँ देखो, इसमें कोई cos square x. मान सुनो पहले, ऐसा कोई रूल नहीं कि ऊपर वाला का इंटीग्रेशन कर दो और नीचे वाला का सेपरेट कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे अपना cos x square x का फॉर्मूला जो है हमारा cos x cot x है। कॉसेक स्क्वायर का क्या लिखोगे? हाँ 1 upon sin square x. हाँ, वो लिखो तो अच्छा होगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स है उसको 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, और हाँ सर। कॉसेक स्क्वायर है उसको 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिखो। चलो पहला स्टेप ये लिख दो, मैंने बोला अभी वो लिखो, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, और डिनोमिनेटर में जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है उसको 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिखो। मतलब के साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया, ये अपर लोअर इंटरचेंज हो जाएगा ना। हाँ सर, 1 upon cos square upon 1 over sin, तो sin square by x square cos square आएगा। मतलब टेन स्क्वायर एक्स, हेलो, मतलब टेन स्क्वायर एक्स हुआ ये। अरे हाँ सर, sin by हाँ, अभी मेरी बात सुनते जाओ, जो जो आने वाला है वो मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि मान लो कि इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि पावर है। सुनो ध्यान से, साइन स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर, सेक स्क्वेयर। तो सेक स्क्वेयर का पता है आपको इंटीग्रेशन? Yes, sir. Sec square minus 1 कर देंगे इधर. नहीं, सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन का पता है। हुज डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर एक्स? सर अरे टेन एक्स। डोबे आप लोग इंटीग्रेशन भी नहीं करते, डेरिवेटिव भी नहीं करते, फिर क्या बोलेंगे हम? डेरिवेटिव देखो, अभी टाइम है, वैकेशन का टाइम है आप लोगों के लिए, तो टाइम निकालो भाई। डेरिवेटिव की सब फॉर्मूला पेज पे लिखो, जितनी पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में आई है, सब फॉर्मूला लिख के दिमाग में रखने पड़ेगा आपको। वैसे यहाँ इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आती है, उसका भी लिस्ट बना के कंप्लीट करो। बार बार लर्न करने से आपको याद रहेगा, नहीं तो ऐसा नहीं अंदर जो एक बार पे देख लिया तो वो नहीं आने वाला। मैं कहने जा रहा था कि आपको टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, बट सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको ध्यान में है, लेकिन वो भी अभी तो नहीं आप लोगों ने बोला। मैं बोलता हूँ सर tan x अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हम लोग ने आएगा। क्यों 10x आएगा? कि डेरिवेटिव ऑफ 10x आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने पूछा कि हुज डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ऑन द स्पॉट निकल जाना चाहिए यस सर 10x। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स 10x ही होगा, ऐसा समझना है।
तो मैंने क्या बोला कि टेन स्क्वायर एक्स तो आया बराबर, उसका इंटीग्रेशन पता नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं त्रिकोणीय फॉर्मूला के मुताबिक। सोचो यस सर। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, कौन सी फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन -1 है। आपको पता है कि नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हम बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स। Yes, sir. यस यस। हाँ तो फिर सोचो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे? सर tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x -1 लिखेंगे। बस तो वो लिख दो, बोल लिख दो तो सर बोल। tan x सर आ गया आंसर, tan x - x। हाँ तो वो बाद में आएगा ने, ऐसा सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा तभी दिमाग में आएगा वो। अच्छा है आपने लिखा, वो बोल लियो बराबर है, टेन स्क्वायर एक्स हो गया, टेन स्क्वायर एक्स का लिखो सेक स्क्वायर एक्स -1 और बाद में दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन सोचोगे तो पहले वाले का टेन एक्स है, दूसरी वाली टर्म 1 का एक्स है, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी वो उसका आंसर है। सबको समझ में आ गया बराबर? यस सर। अब आज का लास्ट सम बता देते हैं, 20 सम। Yes. हाँ इसमें देखो 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। देखिए इसमें क्या करोगे आप, सोच के बताओ। સર પેલું જ ને cos square x બંનેમાં ડિવાઈડ કરવાનું 2 by cos square x देखो बराबर है, cos स्क्वायर एक्स के सेपरेट डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो, क्या होता है बाद में बोलो। બસ સર इसके बाद वाला स्टेप बोलो, डिवाइड कर दिया मान लो, फिर क्या हुआ अंदर आंसर, वो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा? सर इंटीग्रेशन 2 - cos स्क्वायर x upon 3 sin x। हाँ भाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इतना तो सेपरेट किया आप लोगों ने। હા સર यस सर। हाँ तो अभी उसका क्या मतलब हुआ वो तो निकालो, सिर्फ उसको देखते रहोगे, कुछ दिमाग चलता है कि नहीं? 2 बाई कॉस स्क्वायर का नीचे कॉस स्क्वायर आया तो वो सेक स्क्वायर है, पता नहीं चलता है इतना जल्दी, मेरे को बताना पड़ता है कि क्या लिखो क्या लिखो, तो फिर आप कैसे सोचोगे? हाँ एग्जाम में कैसे लिखोगे? 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आया वो तो आपको आइडिया आ गया, तो बाद में 2 बाई कॉस स्क्वायर को हम 2 सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं, वो भी मेरे को बताना पड़ता है। नो सर लिख सकते हैं 1 upon cos तो स्क्वायर लिखो x ने sec तो स्क्वायर फिर x यही तो बोलना चाहिए ने, 2 सेक स्क्वायर है वो तो उसका इंटीग्रेशन आएगा, अभी अभी तो किया सेक स्क्वायर का, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स लिखो, फिर माइनस वो जो है 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसको क्या लिखोगे? 3 sin x cos sec स्क्वायर x। क्या लिखा? बाई ये तो हो गया, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो है, उसको क्या सोचोगे आगे? into 1 by cos x 10x into sec x। हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे फॉर्मूला की तरफ जाओ ना यार, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई सेक एक्स टेन एक्स की कोई फॉर्मूला है और यहाँ भी तो सेक एक्स टेन एक्स बनता है, फिर क्यों सोचने पड़ जाते हो? देखो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो लिखो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट करके dx लिखो। चलो आगे बढ़ो, ब्रैकेट में 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हुआ ना, उसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू जो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, एक कॉस एक्स सेपरेट कर लो, एक साइन बाई कॉस के नीचे लिखो, तो 1 बाई कॉस को हम सेक एक्स बोलेंगे, साइन बाई कॉस को टेन बोलेंगे, तो सेक एक्स टेन एक्स आया। हां सर sec x ये करना है भाई, ट्रिगोनोमेट्री आनी ही चाहिए। अब देखो, अब सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लो। सर sec स्क्वायर x का tan x आ जाएगा और sec x into tan x का सेक एक्स का तो सेक एक्स है, sec तो x आएगा। हो गया आंसर, बोलो क्या आंसर होगा? 2 tan x हाँ minus 3 सेक एक्स माइनस 3 सेक एक्स बराबर है, वही आंसर है। चलो अब मैं एक्स्ट्रा सम दे रहा हूं आप लोगों को, जो आज आप लोगों ने गिना ना यहाँ पे, हाँ है? सर हाँ तो वो कल मतलब कि परसों गिन के बताना मेरे को आंसर, बराबर? तो जो पहला वाला सम में बोलूं, इंटीग्रेशन की साइन पढ़ो, जैसा इसमें दिया है वैसा ही। हाँ अभी देखो 5 इंटू
x raised to 7 plus x plus 3 ब्रैकेट कंप्लीट dx जो पहले से बोलता हूं फिर से 5 इंटू एक्स रेस टू 7 प्लस एक्स प्लस 3 dx हो गया। हाँ सर दूसरा क्वेश्चन लिखो देख एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट dx जो फिर से बोलो एक्स क्यूब हाँ फिर ब्रैकेट पढ़ो हाँ 1 प्लस और सिर्फ 2 के नीचे ही एक्स क्यूब लिखो 2 बाई एक्स क्यूब ऐसा 1 प्लस 2 बाई एक्स क्यूब कितनी दफे 2 बोला by- होगा हाँ सर हाँ dx Bracket. तीसरा नंबर लिखो x प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट होल કરીને होल क्यूब dx x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब आगे अनदर सम लिखो x रेज टू 5 प्लस 7x रेज टू 3 plus 2x whole divided by x raised to 4 ફરીથી સાંભળી લો ન્યુમરેટર x raised to 5 plus 7x cube plus 2x whole divided by x raised to 4 dx okay हो जाएगा। complete यस सर कंप्लीट सर, ये हम लोग परसों करके दिखाएंगे सर। another one लिखो यस x cube सर plus x square plus x plus 1 whole divided by x plus 1 dx सर हो जाएगा, कॉमन वाले की तरह है। उस टाइप का ही है उसमें से हाँ फिर हाँ सर आगे लिखो another one number 6 integration of 5x plus 3 sin x plus e raised to x and dx another one integration cosec x जो cosec x sec x ની જેમ આવે ને cosec हाँ सर into bracket cosec x plus cot x bracket complete and dx another one સર 10 આપવાનો છો another one હા સર integration cosec square x upon sec square x dx number 9 3 minus 4 cos x 3 minus 4 cos x upon sin square x dx and the last one integration 4 sin x minus 3 cos x bracket complete ને dx okay यस बस सर આ 10 સમ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના અને ક્યારે બતાવવાના મને તમારે परसों वेडनेसडे परसों जब पीरियड आएगा ना तो देख लेंगे हम बराबर है ओके यस सर ओके सर हाँ तो यहाँ हम रुक जाते हैं स्टॉप कर देते हैं भाई पंकज બધું सब माया संकेली लीधी यस सर
हाँ, सब कुछ बंद हो गया ना बराबर। अभी यहाँ रिकॉर्डिंग जो करते हैं वहाँ कहाँ बनाना है पता ना, आपको पता है? चलो तो फिर परसों मिलते हैं। आ बाजू जाएगा। बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय। जरा બંધ કરવાની છે हाँ हाँ रेकॉर्डिंग થઈ છે તો રેકોર્ડિંગ કેવી રીતે બંધ કર્યું છે? એ પાછું રેકોર્ડ પર જ આપણે ચાલે જવાનું નીચે રેકોર્ડ આવે છે કે નહીં પેલા બેને કરેલું તો રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડ થયું છે કે તેઓ કઈ ખબર હા એ કેમ કે રેકોર્ડેડ ફાઇલ એને આપણી પેલી ફાઇલ કન્વર્ટ થશે ને એટલે વાર હા. લાગશે એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે રેકોર્ડ બંધ નહીં કરી શકશું પણ અહીંયા એનું પણ ઇન્ડિકેશન પણ તો કોઈ દેખાતું નહીં કા છે નથી મારા હરવામાં મારી ડોટરમાં અહીંયા નીચે જ આવી જાય છે તરત અચ્છા, અચ્છા. હા બેને રેકોર્ડિંગ બોલાવો એમને ફોન કરીને બતાવો એને બોલાવી દીધી હા બધામાં અલગ અલગ હોય છે ને એટલે બહુ સમજ નહીં મને પડતી તો કક્કાનો કો નથી આવડતો આમાં, કારણ કે આ બધું શું છે નવું નવું જનરેશન બધું લાવે. સાચે સર આ એક તો કોરોના વાળા માટું ખાઈ જાય એ જ બોલ્યા કરે આપણને ગૂંચવે. હા સ્ટાર્ટિંગમાં તો હા મને ખબર ઉપર જ આવી જાય ને નથી આ બધું બંધ કરી દે અને રેકોર્ડિંગ જેવું કીધી જોઈએ. ઓકે. સ્ટાર્ટિંગમાં તો રેકોર્ડ મને ખબર નહીં કે એને ફાઇલમાં ચેન્જ કરતા વાર લાગે તો મેં તો બંધ કરી કાઢ્યું તો અરવા કે મમ્મીએ ટોકું બંધ થઈ ગયું એવું જ થાય છે ને પણ આવી તો જાય છે પાછું નાનું તમારું આવી તો ગયું છે પણ એ ફાઇલમાં કન્વર્ટ જ નથી થયું હે પછી ગયા હા, પીરિયડનું મેં આખો એને ટાઈમ આપો રેકોર્ડ એને ફાઇલમાં ટર્ન કરવાનો પછી મેં સ્વિચ ઓફ કર્યું હે હવે એ તો ભાઈ ટ્રાય કરીને તમને લર્ન કરીએ છે એવું જ થયું. આમાં રેકોર્ડિંગ કા છે તે મને સમજ ના પડી આપણું નથી કરવાનું આપણે નથી કરવાનું ચલો સારું કારણ કે આ 4 રેકોર્ડિંગમાં જ મારે તો મગજની ગઈ થઈ જાય છે એવું છે અચ્છા એમ બી એ લોકો ઇંગ્લિશનું ને કમ્પ્યુટરનું જોતા નથી આ જોવે તોય બહુ છે હા મને ફર્સ્ટ ટાઈમ તો મારું થયું ના મને ખબર નહીં કે વચ્ચેથી ના બંધાય તો મને અરવા કે મમ્મી
તમે તો બંધ કરી કરો. હું કહું કે મને શું ખબર કે બંધ કરી કરો તો ના થાય. તમે કીધું દેખો બંધ કરી કરો. હા, તો કે નહીં થાય. એને ટર્ન કરવાનો ટાઈમ તો આપો. પછી ગયા વખતનું થયું બરાબર. હવે આજે પછી નહીં રેકોર્ડ કરતી, હા ને? હા કરવાનું નથી તો ખાલી ખાલી કોણ બધું કરે?